ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਤ ਮੰਡਲ, ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭੌਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪਾਵਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੂਜ ਪਾਦ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗੱਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 5ਵੀਂ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਹਰਕੋਵਾਲ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 98 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰਕੋਵਾਲ ਡੇਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 98 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੈੱਡ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖੜੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਦੀਆਂ ਜੁਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਭੇਦ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
कई बाबा ईशर सिंह राड़े वालियां वांगू राजे जोगी, फिर भी आनंद विच, कईयां दी भिखिया बिरती द्वारा ही निर्वाह बिरती है, ज्ञान विच कोई फर्क नहीं। पर महापुरख सारी जिंदगी बरकत रहे, बरकत असीं बहुत बरकत वेखे, 4 दिन बरकती हुंदी, बाद विच माया दी लपेट विच आ जांदे। पर इस महापुरख नूं वेख्या, जां संत सोम जी होया निर्मले संतां च, जां महाराज पंडित ईशर सिंह जी दोधर वाले महापुरख, होर भी सारियां दे हुण नां नहीं लै जा सकदे, पर जिन्हां नूं असीं नेड़े हो के वेख्या, मुंड तो अखीर तक एक रस जीवन गुजार गया। गज के बोलो सतनाम। जाड़ और चेतन दोहां माया दे उत्ते उन्हें विजय प्राप्त की। महापुरख जी खलोते, असीं साधुआं च रह पे साधु साधुआं दा सत्कार किवें करदे, पर जे साधु होण जिवें जानी किसी दी अड़ीक विच कोई खड़ा हो, जिवें अरदल विच किड्डी महान आत्मा, दास गए नमस्कार करन लगे ते महापुरुषां ने नमस्कार नहीं करन दित्ते, हाथ फड़ लै, ये उन्हां दी गरीब नवाजी है, अपनी छाती नाल ला लिया, कहन लगे पलंग दे उत्ते बैठो। मैं बेनती की महाराज साडे लई तुसीं बाबा ज्वाला सिंह दे स्थान है, गुरभाई है, असीं तुहाडे शीशां दी न्याई हैं, भी तुहाडे आसन ते असीं किवें बैठ सकदे। महापुरुष कहन लगे फर्क ही समझ ही जाने, जे नहीं उत्ते बहना तो असीं भी भुन्ने बह जांदे। मैं बहुत ही आजजी नाल बेनतियां कीतियां, ये महापुरुषां दी कोई बख्शिश की गल करदे हैं, क्यों नहीं बदोबदी फड़ के बहाल लिया, मैं बड़ा सकोच बैठा। फिर महापुरुष कहन लगे अज एक फोटो खिचाउणी तुहाडे नाल, जिवें उन्होंने अपनी एक निशानी देनी हुंदी है। साध संगत जी, महापुरुषां ने फोटो खिंचाई, मैं एक निशानी वजों हाले तक रखी हुई है। संत महापुरुष बाबे दविंदर सिंह जी सहाबपुर वाले, सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार च इन्होंने बहुत ही शलाघायोग कदम किए। थां थां कीर्तन दरबार संत समागम करा के जिस तरह माझे दे इलाके विच लोकां नूं गुरमत नाल जोड़ रहे। महापुरुषां ने वो चित्र देखा, एक उन्हां दी प्रेत दी गल, फिर मैं प्रेम च आ गया, क्योंकि हुण साधुआं च रहने थोड़ा सुभाव खलासा भी हो जाता। मैं बेनती की महाराज आप जी अपने साथ महापुरखों नूं बेनती की अपने पहले जीवन बारे दसो। उन्होंने अपना सारा सन सम्मत दिन बार भी, और जिस तरह असी स्कूल पढ़न दे वेले संत महापुरख बाबा हरनाम सिंह जी महाराज जी की पावन शरण विच जांदे रहे, वो इहो जिहा महापुरख सन जो जपजी साहिब च लिखिया ना, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबलसूर, तैन मैं राम रहिया भरपूर। उत्थे माड़ा साध नहीं सी टिकदा। जदों किसी ने कहना मैं संत होना, ते 3 डांगा कुट कुट के तोड़नियां, फिर पुछना होना संत, कहना हाँ जी, कहना आ जाओ पास हो गया। संत महाराज बाबा हरी सिंह साहब, सानू बहुत ही बड़ा फखर है उन्होंने महापुरखों से। खालसे के 5 तख्तां चों खालसे की जन्म भूमि जिथे 300 साला मनाया, उस पवित्र तख्त की सेवा संत महाराज बाबा हरी सिंह कहारपुर वाले ने कराई है। बाबा हरी सिंह जी महाराज जी की आरदल च भी उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थी भी सी मालपुर, ते सेवा का भी थोड़ा थोड़ा समा, प्रवचनों का भी आसन ते गड़बा चुकन का थोड़े दिन समा नसीब होया। उन्होंने भी अपनी जीवन कथा दसी कि किमें बाबा हरनाम सिंह जी महाराज ने, अजकल तो हुण
ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾ ਮਰਸਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚੋਂ ਆਏ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਜਿਆਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛਕਣੇ ਛਕ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਭਰੂ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਅਰਦਲ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾ ਹੁਣ ਕਹਾਰਪੁਰ ਦੀ ਝਿੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੌਲਾਂ ਵਾਲੇ 62 ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਰਕਤ ਬਲੇਨੇ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੁੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਗਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਸਾਧਾਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮਲਤਾਨ ਗਏ ਸਾਬਣ ਮਲ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਬਦੰਤੀ ਵੀ ਬੜਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਚਾਪੀ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਤ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੀ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਣੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਕੈ, ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਵਨ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਲੇ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਚੋਲੇ ਗਿਣੀਏ ਨਾ 19 ਲੱਖ ਸਾਧ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਫੇਰ ਗੱਠਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ, ਗੱਠਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਬਲੈਤ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਤੀ ਮਨ ਸੰਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਨਿਰਵਾਣ ਆਤਮਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੋਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ 300 ਸਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ। ਮੋਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਸਾਲਾ ਜਿਲੇ ਕੱਢਿਆ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਹ ਦੇ ਲੋ ਹਸਪੀਟਲ 500 ਬੈੱਡ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਦੇ
क्योंकि उन्होंने माया की लग लवेड़ होंगी नहीं। जो आँदी संगत की चीज़ संगत की सेवा च साध संगत जी लाई जाते। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई बंदा 60 साल तपस्या कर लै पर एक बीमार नूं राजी कर दईए तो 60 साल की तपस्या नूं वध पुण्य आ। क्योंकि बंदा तंदुरुस्त हो तो बंदूक फड़ के देश की राखी करू, पुलिस फड़ के अंदर की राखी करू, माला फड़ के भजन करू, आ कारोबार करेगा। जिहड़ा बीमार आदमी की कर सकदा? तंदुरुस्ती। देखो महापुरुषां ने किड्डा वड्डा उद्यम किया। महापुरुषां दी हाले भावनावां बहुत सन, पर संत महाराज बाबा दलेल सिंह जी दे विछोड़े करके वो प्राण त्याग गया। किस ही कोई कोय मंझ नमाणी एक तू, क्यों ना मरीजा रोए जान लग चित ना आवे। आज आ सारा संत मंडल बैठा। निर्मल भेख नूं भी संत बाबा दलेल सिंह जी ते इन्ना मान सी जिवें किसे वेले महाराज पंडित ईशर सिंह दौधर वाले, महाराजा हीरा सिंह 1 लाख मोहर सोने की लैके नाभे वाला गया। कहन लगे असीं कोलियां की दलाली च मूँह काला कराउणा, लै जा चुक। कहंदे एडा दानी नहीं मिलना। पर कई प्रेमी सुणोदे महाराज ने कहा एडा त्यागी नहीं, पर महाराज ने अपने त्याग का हंकार नहीं किया। उस वेले महाराज दे गड़बई ने यह गल कही है, और राजन हंकार ना कर, इस निर्मले संत वर्गा तैनूं त्यागी भी दुनिया के किते नहीं लजण। फिर पंडित सोम जी महाराज उन्होंने दर्शन रज रज किए। असीं संतां को कोकरी पंडित सेहल सिंह जी महाराज जी तो पढ़ते सी, उत्थे आउणा, टिकट लैके देनी, पैसा नहीं फड़ना, कदी लक नूं बन्नण लई डोरी जां गड़बे वाली डोरी, कपड़े सुकने पाउण नूं जां कोई गाती, बई इहो जी चीज ग्रहण ही कुछ नहीं करनी। ते महाराज भी दे लो दुनिया दे 2 चादरां च चले गए। साधु जले हुंदा ना, बाबा हरी सिंह महाराज मैनू कहण लगे भी साधु लई 1 अलफी, 1 कफनी ते तीजा वस्त्र गाती है गिलती। कफन जिले पाया जाता उस दिन तो देह अध्यास नूं छड्ड देण कि अज मैं जीवित भाव हंकार वालों मर गया। ये जिहड़े चिन्ह आ इन्हां दे पिछे कोई फिलासफी, पर अज साध संगत जी बहुते मंगतियां ने लीड़े पा लै, भेख की बदनामी करते। पर साध संगत जी जड़े महापुरख हैं मुश्क अनस्त के खुद बबोयत ना के आतार गोयत। जड़ी कस्तूरी है ना, जड़ा अतर फलेल बेचण वाला वो कहे ये कस्तूरी है, वह कहना बिल्कुल ना मना। कस्तूरी अपनी खुशबू ना अपने आप दस दिंदी मैं कस्तूरी हाँ। जड़ा महापुरख है उहदे वास्ते दा प्रापे गंडा करन दी लोड़ ही नहीं पैंदी। मुसलमान कहंदे फलाना फकीर मुश्क गया, मुश्क नाम है फारसी विच कस्तूरी दा। भाव इहदे विच नाम बाणी भगती दी इन्नी सगंधी आ गई है, जे सगंधी ना हुंदी महापुरखां जां मोनी विच ते आ संगतां दा ठाठा मारदा कठ किवें हो सकदा। आ पिछले दिनां सुल्तानपुर लोधी बेर साहब दे नेड़े एक बजुर्ग वाहिगुरू जाने कित्थे दा सी, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी मर गया। 3 दिन लाश पई रही। ਅਸੀਂ पुलिस वालियां नूं दस्सिया कि इस तरह एक लवारस लाश पई है, इस तरह संस्कार कर दें, कल तुसीं फिर पुलिस वाले तुरे फिरोगे, देख लो कुछ दस के। फिर मैनेजर साहब बेर साहब जिले पुलिस वाले सहमत दी कि सानू कोई पता नहीं लग रहा, तो साध संगत जी गुरु घर चों बालन ना उहदा संस्कार किया। अक्सर वो किसी परिवार का, किसी पिंड का, किसी जात बरादरी का होवेगा, उसनूं 4 बंदे चुकण वाले नहीं मिले। पर जिथे महापुरख हुंदे आशिक का जनाजा निकले धूम धाम से। आ महापुरखां दीआं कमाइयां, ये कमाइयां दी बरकत है। सो साध संगत जी कितने संत महाराज बाबा मलकीत सिंह जी भी आ गए, क्योंकि दुआबा निर्मल मंडल विच असीं उन्हां नूं प्रधान साहब की सेवा दी। शरीर की क्रिया बड़ी ढिली सी, पर महापुरखां दा दिल बड़ा मजबूत। ते दास भी आ ढक्की साहब दीआं तुसीं रोज़ खबरां पढ़दे हैं। गुरु ग्रंथ साहब पिंड दे हजूम ने कट्ठे होकर अग ला ला के स्वरूप साड़े, पोथियां गुड़ के, इतना बजर पाप उथों आए सी। और घोड़े महापुरखां दे मार मार के सूए जख्मी किते।
पारा मोनी जी का प्यार खिंच के लाया। सो साध संगत जी महापुरख संत महापुरुष बाबा राम सिंह ताजे वाले वो साडे सैकटरी साहब दास नूं तुसीं मीत प्रधान की सेवा दी, क्योंकि दुआबा निर्मल मंडल रजिस्टर्ड है। जिन्ने दुआबे विच साधुआं निर्मलियां दे अस्थान है उन्हां दा योग प्रबंध करना इस संस्था की तुसीं जिम्मेवारी लाई है। उहदे मुताबक जिथे भी साडा निर्मल भेख दा कोई अस्थान है तो संत बाबा तेजा सिंह खुडे वाले साध संगत जी होर सारे महापुरख ये ना गुस्सा करो मेरा नाम नहीं लिया, मैं समुचे रूप से कहना सारा ही निर्मल मंडल अदासी सन्यासी कोई भी वैसे वितकरा भेख नहीं, पर फिर भी साडा ये संस्था नाल संबंध है। इन्हां अस्थानां दे प्रबंध लई जिवें गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिवें इतिहासक स्थान है ना पंजाब हिमाचल और हरियाणे वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का साध संगत जी फर्ज बनता उन्हों का प्रबंध करना। इस तरह दुआबे विच कपूरथला हुशियारपुर और जलंधर जिन्ने स्थान हैं इन्हां दे प्रबंध की तुसीं सानू सेवा दी है। इस तो उपर साडा फिर निर्मल मंडल जड़ा महानिर्मल मंडल हरद्वार निर्मल पंचायती अखाड़ा महाराजा नरिंदर सिंह पटियाले वाले साध संगत जी उस नूं रजिस्टर्ड करा के गए। जदों साडे सिख हरद्वार कुंभां दे मेलियां ते जांदे सी ना ते दूजे भेख दे साधुआं ने कहना मूँह सिर मना के चोटियां रख के आओ जे साडे रोटी खानी। और सन्यासियां ने गुसाइयां ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप से हमला किया। उस वेले फिर महाराजा पटियाला नरिंदर सिंह ने कहा हुण बख्शणे नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब ते गुरु ते हमला किया, गोलियां ना भुन्ने सी। फिर उन्होंने विचार की कि जिन्ना चिर आपां कोई रजिस्टर्ड बॉडी सिख साधुआं की कायम नहीं करते प्रबंध सही नहीं हो सकता। उस वेले फिर उन्होंने उद्यम करके साहिब निर्मल पंचायती अखाड़ा होंद विच लिआंदा। उहदे पहले श्री महंत संत महाराज महापुरख बाबा मताब सिंह जी नूं बनाया गया। जे तुसीं बहुता विस्तार पढ़ना पंडित कान सिंह नाभा का जिहड़ा महान कोश है ना उहदे च पढ़ लिओ। दस्तूरल जो निजम उप निजम है उहदे सारे लिखे हुए। इस करके साह उन्हां धारावां नूं मुख रख के साडी जो ड्यूटी बनती है वो साध संग जी उहदे मुताबक महापुरुषां नूं शरधा दे फुल भेंट करन भी आए हैं। अते जो साडी ड्यूटी है उहदे वास्ते ते जहेदार साहब भी आ गए ते इन्हां दी भी ड्यूटी है। ते इस करके साध संग जी सारे पक्षों अज महापुरुषों का इकट्ठ बाबा दलेल सिंह जी महाराज जी नूं मोनी जी नूं सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तन तरपिए। उन्हें सारी जिंदगी नाम की कमाई की। बाकी मतां दे सारे साधु नाम जपण की गल करते हैं, पर गुरु नानक साहब ने पहला नाम जपण की गल नहीं की। पातशाह गरीब नवाज ने पहले नंबर ते धर्म की किरत रखी है, दूजे नंबर ते वंड छकना रखे, तीए नंबर ते नाम जपना रखा। जड़ा बगाना हक खाण वाला उन वंड के की खाना, उन नाम की जपना। सब तो पहला सानू गुरसिखां नूं धर्म की किरत। हुण धर्म की किरत बारे दस दईए। कई लोगों का ख्याल है भी साध बेलियां खांदे, असीं हल बाउणे आ दुकानां करदे हां। धर्म की किरत का मतलब जिहड़ी जिहड़ी भी किसी नूं ड्यूटी दिती है धर्म नूं मुख रख के उन्होंने सही ढंग नाल निभाया जाए। हुण पुलिस वाले हाल तां बाउंदे नहीं, वो कहंदे पैसे च साडा भी हिस्सा। जे पुलिस वाले ना होण दो गुंडे सानूं लुट के खा जाण। फौज वाले जिहड़े वो भी तकड़ी नहीं तोलदे, सटेना फड़ के खड़े बार्डरां ते, वो कहंदे माया च साडा भी हिस्सा। ते जे फौज वाले ना होण आ जिहड़ा हंकार करदा हुंदा सी ना, हुण फांसी दा तख्ता नेड़े आ रहा, ये कहंदा सी एक कारगिल की कई कारगिल बना देंगा। अज अपनी जिंदगी की भीख मंग रहा है। सो साध संगत जी की हाल एक खिन विच राज पलटा हो गया। सो साध संगत जी फौज वाले ना होण असीं कोई कारोबार नहीं। उही नौजवान साडे जिहड़े बार्डरां ते साध संगत बर्फां विच खड़े साडी रखिया करदे, उन्हां दी किरपा नाल अंदर दा प्रबंध पुलिस, बाहर दा डॉक्टर जड़े है वो भी दवाइयां ना देण, तंदुरुस्त ना होवे ते आपां कारोबार की करांगे।
अच्छा साधु संत विद्वान ना होण, प्रचार करके लोगों के नशे ना छडाउण, अमृत ना छकाउण, बाणी पढ़न ना लाउण, नाम जपाउण ना लाउण, ते लोग पैसे कमा के शराबां पी पी के जुआ खेल खेल के सब कुछ फूक लैणगे। ते साधुओं का भी माया च हिस्सा है, डॉक्टरों का भी है, ते ग्रंथी सिंघां का भी है। ते जे ग्रंथी ना होने तो तुहाडे गृहस्थी दीयां लावां कौन करावे, ते रागी ना होने तो आनंद कारज लई पढ़े कौन। ग्रंथी अरदासां करदे महाराज कनेडे पहुंच जाण, इन्हां दे मुंडा कुड़ी जंम पै, इन्हां दे परिवारां 'च सुख रखण, पर असीं अज ग्रंथी की बिल्कुल कदर नहीं करते। जे किते साधु चंगा लीड़ा पा लै, रागी चंगा लीड़ा पा लै, चंगी सवारी रख लै, सेंट ला लै, कहंदे लो जी हुण तां साध मुश्के फिरदे पे सेंट दसो मझां दे सिंगां नूं लाउणी जां गां दे पूछ नूं मलणी, ये बंदियां वास्ते बनी। असीं गुरु नानक दे गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह आ, गुरु गोबिंद सिंह दे साध आ। साडा गुरु किले बनाउंदा रहा, तोपां रखदा रहा, घोड़ियां दीयां सवारियां बगियां दीयां छातर रखदा रहा। असीं किसे घसियारे दे चेले, असीं कलगियां वाले पातशाह दे चेले हैं। साडे वास्ते उन्हां राज ठाठ सब कुछ बख्शिश कीता। इस करके साध संगत जी गुरमुख प्यारिओ, गुरसिखां दे महाराज ने किन्नियां बख्शिशां, किन्नियां किरपा कीतियां, पर फिर इन्नियां बख्शिशां दे पढ़ार होण दे बावजूद एक तां हुंदा किसे नूं कुछ मिले ना फेर त्यागी है, पर बाबा दलेल सिंह महाराज दे चरण तरलोकी झुकदी सी, तरलोकी फिर त्याग करके दिखा लिया, और सच्चा त्याग। ये नहीं भी नार मूए घर संपत नासी ते मूड मडाए भया, सन्यासी घर का सब कुछ फूक लिया ते फिर किसे जाके मंदिर मसीते बह गया। पर बाबा जी महाराज दे सब कुछ हुंदियां होया सारी जिंदगी इहो जी निर्वाण अवस्था प्राप्त की है। वो दुनिया के साडे वास्ते एक मील पत्थर और एक चानन मनार, एक इहो जी सिक्ख्या छड़ गया कि गुरमुख प्यारिओ, गुरमुख जन्म सवार, दर गए चलिया सच्ची दर गए जाए, सच्चा पिड़ मलिया। लो एक शब्द पढ़ लो, उस तो बाद फिर माफी मंग लेनी। तेरी करनी नू देख जग रोवे, सचखंड जान वालिया। तेरी करनी नू देख जग रोवे, सचखंड जान वालिया। बोलो सारे गज के। तेरी करनी नू देख जग रोवे, सचखंड जान वालिया। तेरी करनी नू देख जग रोवे, सचखंड जान वालिया। वैसे तो बाणी कहती ना, संत मूए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए रोव हो सागत वापरे, जो हाटे हाट। वो तो सचखंड चल गए। पाश्चाताप तो सानू सानू वो घाटा पिया जड़ा सदियां पर पूरा नहीं हो सकता। साडे हथों एक इहो जिहा कीमती लाल फुस गया। अज अरदास करिए, हे गुरु नानक पातशाह, तू इहो जिहा महापुरख सानू बख्श ਜਿਹੜੇ खालसे पंथ नूं सेध दे के चढ़दी कला कर। इहो जिहा महापुरख बाबा दलेल सिंह, बाबा मोनी जी, सो साध संगत जी, महापुरुषां दी बैठक हुई सी। उस दे अंदर कुछ विचारां होईयां। हुण मैं निर्मल मंडल वालों कुछ 2 मिनट दीयां बेनतियां, क्योंकि अस्थान दे प्रबंध नूं चलाउण वास्ते सेवादार दी नियुक्ति दा होना बहुत जरूरी है। भावें तुहाडी सारियां दी सेवा महान है, तुसी सारे प्रेमी, चाहे सहजधारी हैं, चाहे अंम੍ਰਿਤਧਾਰੀ, चाहे महापुरख सहयोगी। देश प्रदेश दीयां संगतां भी मोनी जी नाल जुड़ियां। आ जिन्ना पैसा लगा ये बाहरला भी लगा है, ये ना समझो इत्थे पिंड वालियां दा जी। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हें महापुरखां नूं हर पक्ष तो सहयोग दिता। वो सरदार साहब जी का भी धन्नवाद जिन्हों ने कुटिया वास्ते जगह छड्डी, नहीं तो अज 1 इंच नहीं वो जगह छड्डदा। उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है, उन्हां दा किड्डा त्याग। साध संगत जी
प्रबंध का जिन्ना चिर कोई एक बंदा जिम्मेवार ना हो, संगत आके किहनूं मिलेगी, किस तरह प्रबंध चलेगा। प्रबंध नूं चलाउण वास्ते देश का राजा ना होवे, देश का प्रबंध नहीं चलता। जिले च कोई DC ना होवे, किवें कंट्रोल होवेगा। थाणे विच कोई DSP SHO ना होवे, घर विच कोई बजुर्ग पिता जां कोई होर जिम्मेवार व्यक्ति ना होवे, किवें प्रबंध चलेगा। इस तरह जिहड़ियां धार्मिक संस्था जां स्कूल कालेज हस्पताल हर एक विच, चाहे उहनूं प्रधान कह लो, जथेदार कह लो, महंत कह लो, उहदा कोई भी नाम रख लो, कोई ना कोई मुख सेवादार साध संगत जी थापना पैना। इहदे वास्ते विचार कीती, असीं संगत अगे रखी भी जिहनूं तुसीं हुक्म करो उहदे सिर दस्तार निर्मल भेख वालों ते नगर दी पंचायत ते जो मोनी जी ने ट्रस्ट बनाया ते समुची संगत समुचे होए महापुरखां वालों होनी है। हुण सारियां पगां ते साध संगत जी आपां बना नहीं सकदे। 5 दस्तारां जां 7 कई वारी कर लईदियां ते दूसरा साध संगत फिर उहनूं भी जिम्मेवारी हुंदी है। जदों किसे नूं पंड चुकाउणी होवे ना ते फिर खेस दा मड़ासा बनना पैंदा, लै वे हुण तगड़ा हो जा, तेरे सिर जिम्मेवारी। पिता गुजर जा ते बड़े पुत्त दे पग बनाई दी है ते कक्का तूं हुण परिवार च सियाणा ते छोटे भरावां दा, अपने माता दा, सारे परिवार देख रेख कारोबार दा तैं ख्याल रखना। जिम्मेवारी सौंपनी पैंदी है ते है भी जरूरी। इन्हां चीज़ां दी विचार करके सो जो साध संगत तुहाडे सामने रस्म होनी है, पहलां ते नाम की अनाउंस करना। बाबा दविंदर सोनी बड़ी लिस्ट पढ़ी बैठे ते मेरी भी कोई ड्यूटी सी, उहदे करके मैनूं ये दसना बहुत जरूरी सी। जो प्रोग्राम भी करना सहमति नाल, असीं इत्थे दुविधा पाउण नहीं आए। होए 71 मिलहो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए, हर नामे के हो बहु जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। इस बेनती वास्ते साध संगत जी असीं आए हैं ते ओ ड्यूटी भी जदों महापुरुषां दा विचार होया करांगे। जिन्ना चिर पहला महापुरुषां नूं बुलाउणा ते नहीं तां मेरा ख्याल रस्म कर ली जाए ते फिर श्रद्धा ते फिर श्रद्धांजलियां होण ते बहुत ही चंगी गल है। क्योंकि बाबा जी की सेहत बाबे मलकीत सोहना दी मैं वेख लिया ते जे टाइम नाल उन्हां नूं भी बहुती तकलीफ ना दित्ती जाए, क्योंकि साडे प्रधान साहब हन दुआबे निर्मल मंडल दे। सो इस करके सारियां संगतां ने सहमति दे नाल काम करना ते डेरे नूं दिन दूनी ते रात चौगनी तरक्की वल जाना। ये नहीं समझना भी मोनी जी चला गया जां बाबा दलेल सिंह जी। आ देखो कुटिया इत्थे उन्होंने तप किया, 8-60 तीरथ जै साध पग धरै, कोट बैकुंठ जह नाम उतरे। जिथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष चरण रखता उत्थे 68 तीर्थ निवास करते हैं। जिथे बह के बंदगी करते ना, एक बकुंठ विचारा की कई बकुंठ, ये महापुरुषों की तपो भूमि है। उन्होंने दे मुबारक चरणों की कृपा ना मोनी जी के मन च होया कि महापुरुषों की तपो भूमि नूं आबाद करिए। आस्थान हस्पताल सारा सो अंत विच सारे संत मंडल दा, निर्मल मंडल दा, सारे भेखां दे आए महापुरुषों दा, नगर दी पंचायत, सारे सेवादारां दा, समूह संगतां दा दास बहुत बहुत धन्नवाद करदे जड़ा कि तुसीं कोई दुविधा दा वातावरण नहीं बन दिता। साडियां बेनतियां प्रवान कर लईआं ते साडा आया साधुआं दा भी तुसीं मान रख लिया ते हुण साडा फर्ज भी है भी तुहाडा मान रखना। जे तुसीं मान रखिया ते साडा फर्ज भी मान रखना। इस करके मैं आप सारियां दा बहुत बहुत, क्योंकि इन्हां हत्थां ने पता नहीं किन्ने महापुरुषां इशनान कराए, किन्नियां दे सिर ते पग्गां बनाईआं। तुसीं ड्यूटी साडी इहो जी लाई होई ते साध संग जी ते महाराजे ड्यूटी निभाउंदे ने। कई तां पग्गां लाउण वाले आ ना, असीं तां पग्गां बनाउण वालिआं च ते ਜਿਹੜੇ नहीं बन्नदे प्यारे भी हुण घर जाके बन्नण लग पिओ। इन्नी क बेनती मान लिओ, क्योंकि साबत सूरत दस्तार सिरा पातशाह ने सानू बनाया। सरदारियां मुफ्त ने बड़ियां कुर्बानियां करके मिलियां। अंत विच फिर सारे ही महापुरुषों का धन्नवाद करते हैं। इस श्लोक नूं याद करियो, जिथे महापुरख पिदते हिरदे ग्रंथी छदंते सर्व संशया किशियंते अस्या कर्माणी तस्मन दृष्टे प्रावरे। जिन्हां दी विष्णु ग्रंथी रुद्र ग्रंथी भेद दियां गंढां खुल जानियां,
फिर दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऐसे महापुरख तत्वित उन्हां दी अंतम याद श्रद्धांजलि समारोह विच इकट्ठे हुए हैं। वैसे महापुरख साडे विच मौजूद है ते जिन्हां दे अंदर प्यार होवेगा उन्हां नूं अज भी दर्शन हो सकदा। गए किते नहीं। हाजर नाजरन ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की